Hello students, today we will study about potentiometer. Okay, so students, first of all, what is the work of potentiometer? Work of potentiometer is to measure potential difference between two terminals. It means पोटेंशियोमीटर का प्रॉपर यूज क्या है कि दो टर्मिनल्स के बिटवीन जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होता है, उसके फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर का। बट द मेन थिंग, अगर हम 10th क्लास को स्टडी करें तो हमने पोटेंशियोमीटर की को रिप्लेस करके एक अलग वर्ड को सुना था, दैट इज वोल्टेज ड्रॉप। तो ये दोनों सेम थिंग्स ही हैं। इट मींस क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप को मेजर करने के लिए यूज करते हैं इसका पोटेंशियोमीटर का। बट 10th क्लास के अकॉर्डिंग वोल्टेज ड्रॉप को मेजर करने के लिए हम वोल्टमीटर का भी यूज करते हैं। तो दैट मींस क्या है कि अगर हम यहाँ पे वोल्टमीटर का यूज कर सकते हैं तो फिर हम क्यों एक नई डिवाइस को स्टडी कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं पोटेंशियोमीटर, जबकि वोल्टमीटर तो एक सिंपलेस्ट डिवाइस है जिस डिवाइस के थ्रू हम इजीली दो टर्मिनल्स के बिटवीन क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो वोल्टमीटर का यूज होने के बाद में भी पोटेंशियोमीटर का हम यूज क्यों करते हैं, उसका रीजन है एक्यूरेसी। कैसे एक्यूरेसी वो देखो। इफ आई कंसीडर अ सिंपल सर्किट ऑफ ओम्स लॉ, ओके, देन according to that circuit we are having a resistance R, a meter to measure current, and one battery or power source, positive and negative. The voltage of the battery is equals to V, and one key. Okay, when key is closed, in that case current I will flow in this circuit. So in this case, if I measure how much voltage drop on the resistance R, then it is equals to V is equals to IR according to Ohm's law. So it is equals to V is equals to IR. Very good. Now what about voltmeter? When we put a voltmeter in a circuit, then we have to connect the voltmeter in the parallel of resistance. That means like this. In this condition, when I current flows in this circuit, then a small part of I current flows from the voltmeter. It means if the small part that flowing in this voltmeter V, I am considering that part is I dash, and the remaining current I minus I dash will flow from the resistance, that is R. The one thing, students, we all knows कि अगर आप किसी डिवाइस को पावर नहीं दोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। वोल्टमीटर क्या है, एक डिवाइस है, तो डिवाइस को पावर कौन देगा, दैट इज आई डैश करंट। तभी तो वहां उसका जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगा और आपको एक वैल्यू देगा। तो वो वोल्टमीटर आपको कितना वैल्यू देगा, तो वो आपके पास में वैल्यू होगा दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर। इन दिस केस द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू V डैश इज इक्वल्स टू में I minus में I dash multiply में R. Now compare the both cases. In first case, when we are not having any voltmeter connected in the circuit, in that case the voltage drop across the resistance is equals to IR. But when we connect the voltmeter in parallel to resistance, in that case voltage drop on resistance is equals to I minus I dash R. That means V is greater than V dash. It means voltmeter cannot measure the accurate value of voltage drop. That's why we use another device for accuracy, for error-free measurement. That device is called potentiometer. Okay. Then what is potentiometer? First of all, we will study here two base point, two principle of the potentiometer on which potentiometer will work. So वो प्रिंसिपल पॉइंट्स क्या है, पहले हम उसी को डिस्कस करते हैं।
तो बेटा प्रिंसिपल पॉइंट्स बहुत सिंपल है, ये आपने 10th क्लास में स्टडी कर ली। फर्स्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट, इफ टू डिवाइसेस are connected in parallel, then voltage drop on both device is same। तो पैरेलल के कनेक्शन में वोल्टेज जो ड्रॉप होता है वो दोनों पर क्या होता है, सेम होता है। 10th क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में इस बात को क्लियर किया था। देन अगेन फर्स्ट थिंग इज दिस कि वोल्टेज ड्रॉप जो है वो सेम रहेगा। द सेकंड थिंग इज इफ पोटेंशियल डिफरेंस between two terminals is equal to zero, then current is equals to में zero, because we all know पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करता है, नेगेटिव चार्ज क्या करता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करता है। अगर दोनों पोटेंशियली इक्वल हैं, दैट मींस क्या है, ना तो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा और ना ही नेगेटिव चार्ज मूव करेगा। इन दैट केस करंट किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये दो ऐसे प्रिंसिपल पॉइंट हैं जिस पे पोटेंशियोमीटर क्या करता है, डिपेंड करता है। अब पोटेंशियोमीटर क्या होता है तो हम उसे स्टडी करते हैं एक डायग्राम के थ्रू। लेट्स सी। Student, see, this is the potential board. Here, this one is the wooden board and there is a scale. अब स्केल का मेनली यूज क्या है, हम स्केल के थ्रू वायर की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अब वायर कहाँ है वो देखो, यहाँ से जो वायर है वो स्टार्ट हो रही है। ये वायर सबसे पहले इस डायरेक्शन में जा रही है, इट मीन्स टुवर्ड्स राइट। देन अगेन जैसे ये यहाँ पर पहुंचती है, यहाँ से एक टर्न लेती है इस डायरेक्शन में। तो जो स्केल है वो स्केल यहां से लेके इस लेंथ तक की जो आपके पास में वायर है उसको मेजर कर लेता है, और ये इसकी जो लेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है, दैट इज 100 सेंटीमीटर। एंड 100 सेंटीमीटर का मीन्स क्या हुआ, दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर। दैट मीन्स क्या है कि अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूं कि टोटल मेरे पास में कितनी लेंथ की वायर को मैंने पोटेंशियो बोर्ड में लगाया हुआ है, पोटेंशियोमीटर बोर्ड में लगाया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट्स, इनको हम दो टर्मिनल कंसीडर करते हैं। और टोटल मैंने यहाँ पे 10 वायर्स हैं और पर वायर लेंथ कितना है, 1 मीटर। तो कितने मीटर की वायर को हमने यूज किया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर। अब क्लास के रिमेनिंग फैक्टर्स पर चलते हैं। तो ये आपके पास में अगर इनिशियल पॉइंट अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो इसको मैं कंसीडर करूंगा दैट इज इक्वल्स टू ए। अगर ये आप फाइनल पॉइंट कंसीडर कर रहे हो तो मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं दैट इज बी। कोई कंपल्शन नहीं है स्टूडेंट्स, आप किसी भी पॉइंट्स को इनिशियल और किसी भी पॉइंट को फाइनल कंसीडर कर सकते हो, या इसे इनिशियल और सेकंड को फाइनल कंसीडर कर सकते हो। वो आपके उस पोटेंशियोमीटर को ज्वाइन करने का प्रॉपर वे होगा। ओके, नेक्स्ट। अब जैसे ही यहाँ पे 1 मीटर का वायर कंप्लीट होता है तो यहाँ पर आता है टर्न। अब जो टर्न, लाइक ये देखो, ये टर्न है, और जो स्केल है वो कहां तक मेजर कर सकता है, यहां तक मेजर कर सकता है। तो ये टर्न वाला पार्ट क्या करेगा, उस वायर की लेंथ को इंक्रीज कर देगा, और हम नहीं चाहते कि ये टर्न वाला जो आपके पास में पार्ट है वो वायर की लेंथ को क्या करे, इंक्रीज करे। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉपर की एक स्लाइड लगा देते हैं, एक स्ट्रिप लगा देते हैं। अब यहाँ पे कॉपर की स्ट्रिप से लगाने से बेनिफिट क्या होगा, हमें सभी को पता है दैट करंट फ्लोज फ्रॉम लो रेजिस्टेंस, मैक्सिमम करंट फ्लोज फ्रॉम लो रेजिस्टेंस। जैसे ही करंट यहां तक आएगा, यहां तक आने के बाद में अब उसके पास में दो वे है, या तो कॉपर के थ्रू फ्लो होके इस पॉइंट पर आ जाए, और या फिर वायर के थ्रू फ्लो होके इस पॉइंट पर आ जाए। कॉपर का जो आपके पास में रेजिस्टेंस रहता है वो रेजिस्टेंस मिनिमम होता है। मिनिमम इट मीन्स हम उसे जीरो कंसीडर कर सकते हैं। दैट्स वाई हम यहाँ ये कंसीडर करते हैं कि जितना भी करंट यहां तक आया वो करंट कॉपर के स्ट्रिप में से फ्लो होगा और इस डायरेक्शन में क्या कर देगा, नेक्स्ट आगे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा।
तो इसमें क्या होगा कि जो मिड में या स्ट्रिप के डाउन साइड जो वायर है उसमें से करंट फ्लो ही नहीं होगा, और हमारा जो स्केल है वो उसको मेजर भी नहीं कर पा रहा था। तो हमारी स्केल की जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट एक्यूरेट हो जाएगी। तो ये जितनी भी स्ट्रिप्स हैं वो सब किस चीज की बनती हैं? कॉपर्स की हम कंसीडर करते हैं। Okay. The next point is about this wire. This wire is consist of alloys materials. जितनी भी वायर्स जिसकी आपने 10 मीटर्स की इस वायर को आपने यूज की है, ये वायर नॉर्मली किस मटेरियल की होती है? एलॉय मटेरियल की। बिकॉज एलॉय मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप टेम्परेचर को राइज करते हो तो टेम्परेचर को राइज करने से उसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता। तो अगर रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो हमारा जो मेजरमेंट है वो उतना ही क्या होगा? एक्यूरेट होगा। दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या करते हैं? एलोइज मटेरियल्स का यूज करते हैं, क्योंकि किसी भी वायर में करंट फ्लो होगा तो वो हीट को प्रोड्यूस करेगा, एच इज इक्वल टू में आई स्क्वायर आर टी। दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या करते हैं? एलोइज मटेरियल का यूज करते हैं। ओके, तो ये पोटेंशियोमीटर बोर्ड हो गया। बट अगर आपको पोटेंशियोमीटर को क्लियर करना है तो पोटेंशियोमीटर क्या होगा? ये होगा। इसमें पोटेंशियोमीटर मीन एक्चुअल क्या है कि जो दो पॉइंट्स आपके पास में है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, ये आपके पास में जो दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आप आगे कनेक्ट करते हो किसके थ्रू? बैटरी बैटरी की एंड रियोस्टेट के थ्रू। बैटरी एंड की के बारे में सभी को पता है। अब ये रियोस्टेट का क्या प्रोसीजर है इसको क्लियर कर लेते हैं। रियोस्टेट आपके पास में एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को कंट्रोल करता है। अगर हमें इस पोटेंशियोमीटर बोर्ड में जो वायर्स में करंट फ्लो हो रहा है उस करंट को अगर हमें कंट्रोल करना है तो उस कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रियोस्टेट का यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन एक ही है। वो क्वेश्चन ये क्या है कि जो डिवाइस अब आपके सामने दिख रहा है, इट मींस ये कंप्लीट डिवाइस, ये वर्क करता है पोटेंशियोमीटर का। अब क्वेश्चन एक ही है कि इस पोटेंशियोमीटर डिवाइस के थ्रू हम पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड कैसे करेंगे। तो Okay, students, before learning the process how potentiometer works, we have to learn one thing earlier, that is potential gradient. Potential gradient. The one thing, students, if you understand what is the basic meaning of potential gradient and how it is works in a potentiometer, then you can understood all the applications easily by this potential gradient. First of all, स्टूडेंट्स, आपने उस पोटेंशियोमीटर बोर्ड के अंदर 10 मीटर एक लाइन को कंसीडर किया था, 10 मीटर उस वायर को कंसीडर किया था। उस 10 मीटर वायर को हम यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर के अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स ये फर्स्ट टर्मिनल ए वायर एंड ये एक सेकंड टर्मिनल, सेकंड एंड ऑफ द वायर बी। यहाँ पर मैं उस वायर को इस तरह पैरेलल रिप्रेजेंट करने के बजाय एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक स्ट्रेट वायर के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसका लेंथ डायरेक्टली कितना है? 10 मीटर के इक्वल। देन इसके साथ में सीरीज के अंदर क्या क्या चीजें कनेक्टेड थी? फर्स्ट बैटरी कनेक्ट था, उसके बाद में की बैटरी बी, और बैटरी के वोल्टेज को आप V से रिप्रेजेंट कर सकते हो। देन अगेन रियोस्टेट, एंड रियोस्टेट का जो सेकंड पार्ट है वो कनेक्टेड किससे था? इस B पॉइंट से। तो हम इस B पॉइंट को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं और यहाँ कंसीडर कर लेते हैं B। तो ये आपके पास में हुआ रियोस्टेट। क्लास इन 10th क्लास हमने क्या स्टडी किया था? दैट इन पैरेलल कनेक्शन, इट मींस पैरेलल कनेक्शन मींस कि बैटरी इस AB वायर के पैरेलल कनेक्टेड है। दैट मींस अगर रियोस्टेट पर वोल्टेज ड्रॉप 0 है, इन दैट केस जितना वोल्टेज ये सोर्स प्रोड्यूस करेगा वो सोर्स जो वोल्टेज है वो कहां ड्रॉप होगा? इस AB वायर पे। एक एग्जांपल के तौर पे पहले मैं इस बैटरी को क्लियर कर देता हूं। बैटरी के दो टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इट मींस क्या है कि अगर आप ये सोच लो कि एक बैटरी के लिए एक बैटरी का वोल्टेज 9 वोल्ट है, तो 9 वोल्ट होने का मींस क्या है कि इन दोनों जो आपके पास में टर्मिनल्स हैं, इट मींस पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों टर्मिनल्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 9 वोल्ट है। इट मींस क्या है कि ये पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास में वोल्टेज हो दैट इज 5 वोल्ट और यहाँ आपके पास में वोल्टेज हो दैट इज -4 वोल्ट।
then voltage difference is 5 minus minus 4 is equals to 9 वोल्ट। ऐसा भी कंसीडर कर सकते हैं कि यहां पर आपके पास में वोल्टेज है दैट इज 10 वोल्ट और यहां पर वोल्टेज डिफरेंस है वोल्टेज है दैट इज पोटेंशियल कितना है दैट इज 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा दैट इज 10 minus 1 is equals to 9 वोल्ट। तो ये जनरली कुछ भी नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू किसके इक्वल है, अगर 9 वोल्ट के इक्वल है तो इट मींस दोनों टर्मिनल्स के बिटवीन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा 9 वोल्ट के इक्वल। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम यहां पर जनरली क्या कंसीडर करते हैं, हम कंसीडर करते हैं कि अगर बैटरी 9 वोल्ट की है इन दैट केस जो आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है वो 9 वोल्ट पे और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कितने वोल्ट पे है 0 वोल्ट पे। दैट्स व्हाई इन दोनों के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 9 वोल्ट। हम हमेशा ये कंसीडर करके चलते हैं। तो अगर मैं इसको यहां पर प्रैक्टिकली कंसीडर करूं तो मैं क्या कर रहा हूं, इसे भी कंसीडर कर रहा हूं। तो ये V वोल्टेज के अकॉर्डिंग मींस क्या है कि यहां पे V वोल्टेज पॉजिटिव है और यहां पर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं 0 वोल्टेज। तो इस पॉइंट पर आपके पास में 0 वोल्टेज हुआ और इस पॉइंट पर आपके पास में वोल्टेज कितना हुआ V। इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर AB इज इक्वल्स टू V माइनस 0 इज इक्वल्स टू -। और यही हमारे पास में बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है सेम रहता है। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे V वोल्टेज है और आपके पास में जो वायर है वो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो यूनिफॉर्म है और वो किसी एक ही मटेरियल से मिलकर बनी है, दैट मींस क्या है कि ये पूरी जो वायर के हर जो पार्ट एक स्मॉल पार्ट आप कंसीडर करोगे वो सब क्या है आइडेंटिकल है। इन दैट केस पोटेंशियल जो पर यूनिट लेंथ है वो क्या होगा एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगा। तो उसी पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इट मींस पोटेंशियल डिके पर यूनिट लेंथ और पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ is called potential gradient। पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट को सिग्मा से रो से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। हम यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रो से। तो इट मींस क्या है वैल्यू ऑफ रो इज इक्वल्स टू V by L दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। और अगर आपके पास में एक नया क्वांटिटी है तो इसके बारे में आप दो चीजें जरूर रीड करोगे। द फर्स्ट थिंग इज यूनिट इज इक्वल्स टू वोल्ट पर मीटर एंड सेकंड थिंग इज डायमेंशन। तो डायमेंशन बेटा आपके लिए है कि आपको इसका डायमेंशन फाइंड करना है। सभी को वोल्ट का डायमेंशन पता है, मीटर का डायमेंशन 1 हो गया, दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास में डायमेंशन का वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपके पास में प्रॉपर क्या हुआ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब मैं प्रैक्टिकली इसका मीन बताता हूं। अगर यहां पे वोल्टेज V10 है, वोल्टेज कितना है इस बैटरी का दैट इज इक्वल्स टू 10 और अगर हमारे पास में ये जो AB वायर है ऑब्वियसली इसका जो लेंथ है वो कितना है 10 मीटर का लेंथ है। कुछ ऐसे भी आपके पास में पोटेंशियोमीटर आते हैं जिसमें वायर का जो लेंथ होता है वो 4 मीटर होता है, ठीक है। बट यहां पर आपके पास में कितना है 10 मीटर है। तो 10 मीटर इसका लेंथ है और 10 वोल्ट आपने क्या किया पोटेंशियल इस पर अप्लाई कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना है 10 वोल्ट। तो इन दैट केस पर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू कितना होगा 10 by 10 is equals to 1 volt per meter। It means potential gradient 1 volt per meter। तो प्रैक्टिकली सोचो यहां पर भी 10 है तो ऑब्वियसली यहां पर 10 हुआ। जैसे ही 1 मीटर कवर होगा यहां पर कितना हो जाएगा 9 क्योंकि 1 मीटर तो क्या हो गया ड्रॉप हो गया डिके हो गया। देन वापस 1 मीटर कवर होगा देन 8 फिर 1 मीटर कवर हुआ देन 7 then 6 then 5 then 4 then 3 2 1 and 0। तो ये एक पोटेंशियल ग्रेडियंट का मींस है। इट मींस हम प्रैक्टिकली इस बात को अपने माइंड में कंसीडर करके चलेंगे कि पर मीटर के बाद में कितना वोल्टेज डिके हो रहा है दैट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट और उसी को हम क्या बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। और यही हेल्प करेगा हमें किसमें जितने भी आपके पास में पोटेंशियोमीटर के क्या है एग्जांपल्स है एप्लीकेशन है उन सब में इसी चीज को हम क्या करेंगे
बेस बना के वर्क करेंगे। तो अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, चलो अब हम इनके एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो वी आर रीडिंग हियर एप्लीकेशंस। So first application is to compare EMF of two primary cells. तो स्टूडेंट्स इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दो प्राइमरी सेल्स के जो आपके पास में ईएमएफ है, ऑब्वियस आप ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज इसमें जो डिफरेंस है वो अब आप जानते हो। तो प्राइमरी सेल के जो ईएमएफ हैं उन ईएमएफ में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस उनका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अब रेशियो कैसे फाइंड करेंगे वो ये देखो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, अगर अभी तक का क्लियर है देन आगे भी ये बिल्कुल क्लियर है। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोटेंशियोमीटर को ड्रॉ करते हैं। पोटेंशियोमीटर के लिए आपके पास में सबसे पहले एक लॉन्ग लेंथ वायर that is AB. You can consider the length of wire is equals to 10 meter or any meter you can consider according to you. Then again we connect a battery having V voltage. So this battery having V voltage, this is the positive terminal and this is the negative terminal. And after the battery we will connect here in the series key, then rheostat. This is the rheostat, and the same thing we will extend the wire to complete or to make the diagram clean. That is, now our wire is A and B having 10 meter length. Then again students, first of all we connect first primary cell like this, that this is our first primary cell having EMF is equals to E1. Okay, this is the positive terminal of first primary cell and this is the negative terminal of first primary cell. Okay, so keep one thing in your mind, that all positive terminals should be connected from one point, or one end of the potentiometer wire. The same thing if I connect the second cell, it means I am connecting here the second cell E2. This is cell E2. This is terminal, positive terminal, and this terminal is called negative terminal. So this one is E1, this one is E2. Two cells are here. Now, then again, we connect the next two negative terminals of these cells to a two-way key. Two-way key, I think you all know about two-way key. Then this point can be called P, this can be denoted by Q, and this point can be denoted by R. Then from the midpoint of two-way key, further we connect a galvanometer, and next galvanometer is connected through jockey to potentiometer wire. This is the whole circuit to compare EMF of two primary cells. Now, how it works? I have to find this one. First, I have to consider, or I have to take the voltage V greater than both voltage E1 and E2. It means क्या कि मुझे जो V वोल्ट है उसको E1 और E2 वोल्टेज से हमेशा हायर वोल्टेज का कंसीडर करना पड़ेगा। कैसे? If I consider the voltage is equals to 10 volt, then I can compare E1 and E2, two cells having EMF below than 10 volt. Okay, how? If I consider the band is 10 volt and the key is open, both keys are open. Open it means current is not flowing. In that case, that 10 volt is uniformly distributed on AB wire. That means the same thing. I am considering here 10 and here I am considering 0. It means 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. बेटा 10 वोल्ट का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आपको ये प्रॉपर क्लियर हो जाए। सेम E1 का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर E1 का वैल्यू 4.5 वोल्ट है,
तो इट मींस क्या है कि इसके दोनों टर्मिनल्स के बिटवीन जो डिफरेंस है उसका वैल्यू कितना है 4.5 वोल्ट। अब ये देखो कि मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, P को Q से कनेक्ट कर दिया। करंट सिर्फ उसी सर्किट में फ्लो होता है जो क्लोज सर्किट होता है। तो यहां पर जैसे ही P को Q से कनेक्ट किया ये क्लोज सर्किट बन गया। अब इस क्लोज सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। बट करंट फ्लो होना या ना होना डिपेंड करता है किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो बेटा यहां देखो, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4.5 और जिस पॉइंट पर हमने ज्योति को कनेक्ट किया हुआ है वो पॉइंट कितना है 5 और यहां पर पॉइंट कितना है 10। इट मींस इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बिटवीन तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4.5 और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज 5। इट मींस क्या है कि ये हाई पोटेंशियल है और ये क्या है, लो पोटेंशियल है। तो करंट फ्लो करेगा बिकॉज़ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, अगर कहीं पर भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां पर क्या होता है, करंट फ्लो करता है। दैट मींस क्या है कि यहां पे करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा कि यहां पे किसी भी एक डायरेक्शन में जो नीडल है वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही नीडल डिफ्लेक्ट हुआ इतने से आपके पास में यहां पर डिफ्लेक्शन आ रहा है। आपको यहां पे पोटेंशियोमीटर को यूज करने के लिए क्या करना होगा, नल पॉइंट फाइंड करना होगा। नल पॉइंट का मींस क्या है, नल पॉइंट का मींस क्या है कि आपको ज्योति को इसके ऊपर स्लाइड करते हुए उस पॉइंट पर ले जाना होगा जहां पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना हो जाए, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, ज्योति को डिफ्लेक्ट करेंगे और कहां पर ले आएंगे, इस पॉइंट पे जहां पे हमारे अकॉर्डिंग 5 और 6 के मिड में कितना है 5.5। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 10 and 5.5 is equals to 4.5। then again here the potential difference is 4.5। now the both voltage are equal, are same, that's why the total current flows in the galvanometer is equals to 0 and that length on which we got the null point is called balance length, that is equals to L1। the same condition when we remove this point, it means हमने क्या किया, इसे वापस क्या कर दिया, ओपन कंडीशन में लाए। अब हम क्या करेंगे, सेकंड क्यूआर को कनेक्ट कर देंगे। अगर किसी कंडीशन में मैं E2 को कंसीडर कर लेता हूं कि E2 का वैल्यू कितना है, दैट इज 7.5 वोल्ट। तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, यहां पोटेंशियल कितना डिफरेंस कितना है 7.5 वोल्ट और जो कि अभी जहां कनेक्टेड है वो क्या है 5.5 वोल्ट। दैट मींस यहां पोटेंशियल डिफरेंस है 4.5, यहां कितना है 7.5। देन हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल करंट फ्लो होगा। तो अब हम ज्योति को स्लाइड करेंगे और दूसरी जगह पर लेकर जाएंगे। तो अगर मैं ज्योति को स्लाइड करके कहां पर लेके गया, 2.5 पे, तो ज्योति को जैसे मैं 2.5 पे लेके गया तो यहां इन दोनों के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, दैट इज 7.5 बिकॉज़ 10 - 2.5 इज इक्वल्स टू 7.5। सेम यहां पर कितना है 7.5, तो यहां पे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और आपको एक बैलेंस लेंथ मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू L2। तो स्टूडेंट्स अब मैंने यहाँ पे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 लिखे, बट इन रियल ऐसा कुछ नहीं होता। इट मींस क्या है कि यहाँ पे हम ये सिर्फ अपने माइंड में कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप इक्वल हो रहे हैं, पर यहाँ पर डायरेक्टली कोई 0.2 लिखा नहीं होता। दैट मींस क्या कि आपके पास में ये लेंथ आती है कि L1 लेंथ एक बैलेंस लेंथ आ गई आपके पास में, L2 लेंथ किसके लिए आती है, E2 के लिए। अगर आपको फाइंड करना है कि एक्चुअल E1 और E2 का वैल्यू कितना है, तो आप सभी को पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू कितना होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को हमने रो से रिप्रेजेंट किया था, दैट वैल्यू ऑफ V/L। इट मींस यूनिट लेंथ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यूनिट लेंथ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो रो है, बट अगर हम L1 लेंथ को कवर अप करें देन पोटेंशियल ड्रॉप, तो मैं PD लिख रहा हूं, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन L1 लेंथ, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा L1 लेंथ पे, तो मैं उसको लिखूंगा दैट इज E1 और इसका फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, यूनिट पे कितना हो रहा है रो और हमारे पास लेंथ कितनी है L1, रो मल्टीप्लाई में L1। सेम कंडीशन पोटेंशियल डिफरेंस ऑन L2 लेंथ, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज E2 इज इक्वल्स टू में रो L2 और हमें फाइंड क्या करना है, कंपेयर करना है, इट मींस रेशियो फाइंड करना है। व्हेन वी फाइंड द रेशियो ऑफ बोथ
cell's EMF, then value of E1 is over में E2 is equals to में rho L1 over में rho L2, that means L1 over में L2. This is the first application of potentiometer. By this we can find the ratio of EMF of two primary cells, E1 and E2. The same practical we will done in our practical lab also. This practical is mentioned in our main practical, so we will done this in our main practicals also. So this is the derivation, or you can say the whole process of comparison of EMF of two primary cells. Then again the second one is how to find internal resistance of a primary cell. Okay student, the new topic is to find internal resistance of a primary cell. Okay students, for this you have to know about three things, three terms, that is E, V and small. What is E? E is EMF of a cell. What is V? V is terminal voltage of a cell. And what is small r? Small r is internal resistance of a cell. Internal resistance of a cell. Clear? Now, what is E and what is V? Okay. When a cell connected in a circuit, at that time potential difference between that cell, potential difference between the terminals of the cell is called terminal voltage. जब किसी भी सेल को आप सर्किट में कनेक्ट कर देते हो, कनेक्ट करने के बाद उसके जो टर्मिनल्स के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज. और जब वही सेल इनिशियल कंडीशन में सर्किट में कनेक्ट नहीं होता, इट मींस व्हेन ए सेल इज नॉट कनेक्टेड इन ए सर्किट, एट दैट टाइम द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ सेल इज कॉल्ड ईएमएफ. एज ए सिंपल एग्जांपल, अगर किसी भी घड़ी का सेल खत्म हो गया, आप मार्केट में गए और एक नया सेल लेके आए, तो जो नया सेल लाए हो, उस नए सेल के दोनों पॉइंट्स हैं, जो दोनों टर्मिनल्स हैं, उनके बिटवीन जो डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, क्योंकि अब तक हमने उसे सर्किट में कनेक्ट नहीं किया. बट व्हेन वी कनेक्ट दैट सेल इन द वॉच, जब हम उसे वॉच में लगा देंगे, इन दैट केस, in that condition, the potential difference between the terminals of the cell is called terminal voltage. Okay, very good. Relation between E, V and R is equals to me. E is equals to me V plus I. So this is the relation between E, V and small r. तो स्टूडेंट्स इतना क्लियर हो. अब इसके बाद में इसका हम यूज कैसे करेंगे? अब इसको हम कहां पर यूज करेंगे? प्राइमरी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने में हम इसका यूज करेंगे. तो इसका कैसे यूज होगा वो ये देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, एक डायग्राम, एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. किसका? इस कंक्रीट का. तो इसके लिए सबसे पहले जो आपके पास में प्राइमरी सर्किट है, दैट इज पोटेंशियोमीटर, दैट इज अ वायर A and B. क्लियर? तो प्राइमरी सर्किट में आपके पास में एक सेल कनेक्टेड रहता है. हम इस सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज है उसे कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज कैपिटल. देन अगेन वन की, दैट इज कॉल्ड की1, देन रियोस्टेट, दैट इज RH. क्लियर? दिस इज द प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर. नेक्स्ट वी विल कनेक्ट अ प्राइमरी सेल in this circuit like this, that the positive terminal of the primary cell should be connected with the positive terminal of driving cell. So the positive terminal of both cells should be connected with a point. That point is called A point, the start point of the potentiometer wire. Then next, negative terminal of the cell of the primary cell further connected with a galvanometer, and the galvanometer is further connected with a jockey, and jockey is next connected with the potentiometer wire. So इतना सर्किट क्लियर हुआ. इस सर्किट में प्राइमरी सेल के पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करते हैं.
रेजिस्टेंस बॉक्स दैट मींस RB, ओके, और एक की को कनेक्ट करते हैं, दैट की शुड बी डिनोटेड बाय K2, और इसे पैरेलल में कनेक्ट किया, दैट मींस हमने इसे इस टाइप से कनेक्ट कर दिया। तो ये की K2 है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, और ये हमारे पास में प्राइमरी सेल है। प्राइमरी सेल के लिए हम दो चीजें कंसीडर कर लेते हैं, दैट EMF ऑफ प्राइमरी सेल इज E1 एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ प्राइमरी सेल इज V1। क्लियर? तो क्लास अभी सर्किट कंप्लीट है। इस सर्किट में क्या होगा सुनो, सबसे पहले हम K1 को ऑफ रखेंगे और K2 को ऑन कर देंगे। K1 को ऑफ रखने का मींस क्या है कि यहां पे करंट फ्लो हो रहा है, और K2 को ऑन रखने का मींस क्या है कि यहां पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। K1 ऑफ, K2 ऑन। तो इस केस में क्या है कि जो बैटरी आपके पास में कनेक्टेड है, इस बैटरी, ये बैटरी ऐसे बिहेव करेगी जैसे आप मार्केट से वो एक सेल लेके आए हो। जिस सेल को आपने अभी सर्किट में कनेक्ट नहीं किया, उस एक सेल के साथ में आपने क्या कनेक्ट किया हुआ है, आपने एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया हुआ है, जिसको हम बोल रहे हैं पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया हुआ है एक सेल के साथ में, तो वहां पर आपके पास में बैलेंस्ड लेंथ आया। लेट कंसीडर उस बैलेंस्ड लेंथ का वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल्स टू L1। दैट मींस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेल फाइंड करेंगे, जिसको हम EMF बोल रहे हैं, दैट इज E1, तो उसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा, रो मल्टीप्लाई में L1 के। अब नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि K1 तो आपके पास में ऑफ थी, हम क्या करें K2 को भी ऑफ कर रहे हैं। अब जैसे ही हम K2 को ऑफ करेंगे तो रेजिस्टेंस बॉक्स का हम यहां पे रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल R। रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका आप रेजिस्टेंस क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, वेरी कर सकते हो। फिलहाल इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना मैं कंसीडर कर रहा हूं, कैपिटल R कंसीडर कर रहा हूं। जैसे ही मैंने K2 को ऑफ किया तो स्टूडेंट्स ये सर्किट कौन सा है, ये तो वोल्टमीटर की तरह बिहेव करने वाला पोटेंशियोमीटर है, और अब ये जो सेल है वो एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड है। दैट मींस नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ दिस सेल इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज, दैट मींस V1। तो आपके पास में अब L1 जो बैलेंस लेंथ है वो नहीं आएगा, ये बैलेंस लेंथ कुछ चेंज हो जाएगा। लेट कंसीडर ये जो बैलेंस लेंथ है वो कन्वर्ट होगा किसमें, L2 में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपके पास में आ गया L2। इन एक्चुअल E का जो वैल्यू है वो V से क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। तो हम L2 को जब यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे तो बेटर रहेगा कि आप क्या करो, L2 को कनेक्ट करो इसे लोअर लेंथ पे, इट मींस यहां पे। तो इस लेंथ को मैंने यहां पे क्या कंसीडर कर लिया, L2 लेंथ कंसीडर कर लिया। तो ये मेरे पास में L2 लेंथ आ गया, और ये किसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड किया, ये हमने टर्मिनल वोल्टेज के अकॉर्डिंग फाइंड किया। तो टर्मिनल वोल्टेज V1 का वैल्यू किसके इक्वल हो गया, दैट इज रो L2 की। तो E1 का वैल्यू फाइंड हो गया, V1 का वैल्यू फाइंड हो गया। तो V1 का वैल्यू जब फाइंड हुआ तो हम इसे उसी फॉर्मूले में, उसी इक्वेशन में पुट करते हैं जो रिलेशन है EV और R में, दैट इज E इज इक्वल्स टू V प्लस IR। इन दैट केस द इक्वेशन इज E1 इज इक्वल्स टू V1 प्लस IR। तो E1 तो हमें पता है क्या है, और रो L1 है, V1 क्या है, रो L2 है, स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सेल। बट व्हाट इज कैपिटल I? Capital I is the current flowing in the external circuit when a cell is connected to a circuit. It means कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, I के इक्वल होगा। अब एक बार मैं इस सर्किट को थोड़ा सा अलग बनाता हूं। तो इस सर्किट में आपके पास में क्या है कि एक सेल है जिसके लिए टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू कितना है, V1, और या कनेक्ट किससे, एक रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, कैपिटल R के इक्वल है। देन नेक्स्ट यहां पर एक की है, दैट इज K2। तो जितना भी पोटेंशियल यहां से प्रोड्यूस होगा वो कहां टिके होगा, इस रेजिस्टेंस में। तो यहां पर इस रेजिस्टेंस के लिए अगर मैं करंट का वैल्यू फाइंड करूंगा तो क्या आएगा, V IR के अकॉर्डिंग, ये तो ओम्स लॉ है, V में आएगा। तो वहां से अगर मैं किसका वैल्यू फाइंड करूं, I का वैल्यू फाइंड करूं तो वैल्यू क्या आएगा, दैट इज V/, और यहां पर V है क्या, V1, और I यहां पर क्या है, करंट। तो करंट का वैल्यू आपके क्या पास क्या बन जाएगा, V1 में कैपिटल R। कैपिटल R क्या है यहां पे, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स। तो इट मींस क्या है कि मैं I को रिप्लेस कर सकता हूं V1 बाय R से। दैट मींस
E1 is equals to में V1 प्लस V1 बाय में कैपिटल R मल्टीप्लाई में स्मॉल r। इतना क्लियर, सिंपल है इतना। तो मैं इतने पार्ट को नीचे से क्लियर कर रहा हूं, रफ कर दिया मैंने इसे। अब मुझे वैल्यूज को पुट करना है, तो वैल्यूज को पुट करने के लिए देखो बेटा, E1 का वैल्यू आपके पास में क्या है, दैट इज रो L1। V2 का वैल्यू आपके पास में क्या है, दैट इज रो L2। सेम कंडीशन रो L2 ओवर में कैपिटल R मल्टीप्लाई में स्मॉल r। जब मैं इसको इस साइड में लेके आऊंगा तो माइनस साइन हो जाएगा, दैट मींस रो L1 माइनस में L2 इज इक्वल्स टू में रो L2 ओवर में कैपिटल R मल्टीप्लाई में स्मॉल r। रो से रो कैंसिल आउट, और आपको फाइंड क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज स्मॉल r। तो स्मॉल r का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज स्मॉल r इज इक्वल्स टू में L1 माइनस में L2, ये L2 अपॉन में आ जाएगा ओवर में L2 एंड मल्टीप्लाई में कैपिटल R। अगर आप इसको आगे फर्दर सोल्व करना चाहते हो तो वैल्यू आ जाएगा, दैट इज L1 बाय में L2 माइनस में 1 मल्टीप्लाई में कैपिटल R। That will represent the value of small r. क्लियर? तो इसी के साथ इसका जो सेकंड एप्लीकेशन है वो भी कंप्लीट हो गया।